Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. Hello everyone, I am Shivang Rastogi. So today we will be discussing a very important area of the paper 1, that is financial management. So financial management is a very important area, not just from the perspective of its importance as a subject, but because of the weightage that it carries in the UPSC examination. Fine. So let's discuss the strategy for financial management and how we can prepare financial management in a better way. So we will be discussing about the weightage that it carries, we will be discussing the book list, or we will be discussing the syllabus, and we will comprehend the syllabus for the purpose of UPSC exam. So without wasting further time, let's start with the syllabus of FM. So let's talk about the weightage that FM carries. So if I talk about the weightage, so in the part B of paper 1, you have two things, FM and financial market and institutions. FM being a very important subject from the perspective of commerce, so definitely it carries a larger weightage. So what is the weightage of FM? It has the weightage of 140 to 160 marks. That is highest among all the portions or the syllabus of your commerce and accountancy paper 1. इवन इन द पेपर 2 सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी FM की है, ठीक है. और फिर बाकी पार्ट 2 में ये बचा आपका 50-60 मार्क्स का फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आता है. ये वाला बहुत थ्योरेटिकल एरिया है. FM कंस्टिट्यूट बोथ थिंग्स, न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थ्योरी. न्यूमेरिकल्स आर ऑफ इजी टू मॉडरेट कैटेगरी, थ्योरी इज ऑल्सो स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है. और इसमें आपको मैं बता दूं कि अराउंड 90 to 100 मार्क्स की थ्योरी आती है, क्योंकि जब क्वेश्चन 5th होता है वो आपका कंपलसरी है, उसमें थ्योरी ही आनी है. सो थ्योरी आपकी 30 नंबर की बाय डिफ़ॉल्ट हो गई. बाकी क्वेश्चंस में थ्योरी भी आएगी और आपकी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और 50 नंबर से 50-60 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो बोथ हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज. And even in the theory of FM, you need to substantiate your theory with the help of bit of numericals. Fine. And even in the numericals of your FM, you need to substantiate, you need to show that you know the theoretical aspect of it also. क्योंकि numericals FM के generally बहुत छोटे होते हैं, and the weightage or the marks it carries is huge. 15-20 मार्क का numerical आ रहा है, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एक पेज पे सॉल्व हो गया. What will we do? You need to substantiate your answer with the help of theory. Therefore, theory of FM must be very strong and numericals should be good enough. Let's talk about the syllabus, how we can prepare. Syllabus थोड़ा सा बड़ा लगता है, but if you have read FM, it's a bit of manageable syllabus. ठीक है. So let's talk about the function of finance. पहले तो finance function completely theoretical है. ये functions of finance, nature क्या है, scope क्या है, objectives क्या है FM के. सिंपल सी चीज़ है, बेसिक थ्योरी है, 4-5 सबजेक्ट्स में आपको पढ़नी है. देन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ या फिर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, जो कि ऐसा होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. वो वाले फिलोसफी में आपको बताना है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस में, ठीक है. और इसको आप डायग्राम से बना सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना होगा. इट इज़ ऑफ थ्योरी नेचर. टाइम वैल्यू ऑफ मनी FM में नहीं है UPSC में, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट because you know how to apply that functions, how to apply that principles in various other chapter of FM. Specifically TVM नहीं है, ठीक है. बाकी है tools of financial analysis. ये देखो रेशो, फंड फ्लो और कैश फ्लो दे रखा है इसमें. कैश फ्लो फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ते हो आप, यहाँ पे भी पढ़ते हो, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है.
यूपीएससी में थोड़ा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एज सच, और टाइम कम होता है इसलिए आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बाकी कैश फ्लो सेम होता है, ठीक है। रेशोज, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, दीज आर द 2-3 चैप्टर्स। इनमें दोनों में आपकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। थ्योरी एज सच AS3 के हिसाब से कैश फ्लो पूछा जा सकता है, और थ्योरी भी डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट की पूछी जा सकती है कि किस किस सब एक्ट्स में आप कैश को डिवाइड करते हो, एक्टिविटीज़ को, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़। देन रेशो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर पूछा भी जा सकता है बट नॉट दैट रिलेवेंट। यू नीड टू नो व्हाट लाइक एसिड टेस्ट रेशो इज, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मीनिंग सिग्निफिकेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो इट इज़ ऑफ अप्लाइड नेचर। या फिर दो आपकी कंपनीज की बैलेंस शीट दे दी, उनमें रेशोज आपको निकलवा रहा है, कौन कौन से रेशो फाइंड करो, फिर एनालाइज करो विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी किसकी अच्छी है, क्रॉस प्रॉफिट किसका अच्छा है, ROI किसकी अच्छी है, रिटर्न ऑफ ऑन एसेट्स किसका अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें, सो इट्स अ मोर एनालिटिकल चैप्टर रादर देन जस्ट न्यूमेरिकल चैप्टर। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देन यू हैव इंपॉर्टेंट और द कोर चैप्टर्स ऑफ FM, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अगेन थ्योरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। कैपिटल बजटिंग में प्रोसेस, प्रोसीजर, अप्रेजल मेथड्स, वही जो आपके अप्रेजल मेथड्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। बाकी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड मेथड्स में इसमें आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से लास्ट 3-4 साल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, डिसीजन ट्री अप्रोच। सो ये 3-4-5 चीज़ों के 150 वर्ड में, 200 वर्ड में आप अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अप्रेजल मेथड्स में आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स है आपका, ठीक है। देन यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यू नीड टू नो द कॉस्ट ऑफ डिविडेंड, KD पता होना चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता होना चाहिए, एंड देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी के वेरियस मेथड्स, ठीक है, वो सारे पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये आपका पता होना चाहिए, बिकॉज दिस मेथड इज रिलेवेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव एज वेल एज न्यूमेरिकल्स आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट। सो ये 3-4 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। या अगेन टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें 3-4 चीज़ें दे रखी होंगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपका डिविडेंड की कॉस्ट, इसका डिबेंचर्स की कॉस्ट दे रखी होगी, आपको इक्विटी कॉस्ट दे रखी होगी, रिटेन अर्निंग दे रखी होंगी। देन यू हैव टू फाइंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिफरेंट वेट्स दे रखे होंगे, वो आपको हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है। वो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है, छोटे क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से अगर करोगे, प्रैक्टिस होगी तो यू विल बी एबल टू डू दैट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और विद एक्यूरेसी। तो आसान चीज़ है ये भी, ठीक है, ये भी हो जाएगा। देन यू हैव इंपॉर्टेंट एरियाज जो कि हर साल क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से, और न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी अगेन बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फाइनेंसिंग डिसीजंस में कैपिटल स्ट्रक्चर के जितनी भी थ्योरी हैं सब इंपॉर्टेंट है। NI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, MM अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इनका मॉडल पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इसमें इनकी थ्योरी पता होने चाहिए, इनके आपको थ्योरी में आपके एजम्पशंस पता होने चाहिए, क्या क्या है, क्या इन्होंने सजेस्ट किया है, थ्योरी का कोर क्या है वो पता होना चाहिए, पॉजिटिव्स पता होने चाहिए थ्योरी के। देन यू नीड टू नो द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दैट थ्योरी, इवन यू नीड टू नो द डायग्राम ऑफ दैट थ्योरी, कि किस किस तरीके से डायग्राम बन रहा है, ऐसे करके ये डायग्राम पता होना चाहिए। देन यू नीड टू ऑल्सो नो द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो ये 4-5-6 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको एक थ्योरी के बारे में। उस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से क्या होगा, यू कैन सब्सटेंशिएट योर थ्योरी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, दैट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। देन यू हैव इंपॉर्टेंट चैप्टर लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, ये आपको पता होना चाहिए। थ्योरी के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेना। बाकी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है, हर साल आ जाता है, 1-2 साल छोड़ छाड़ के, ठीक। देन यू हैव EBIT EPS एनालिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब EBIT एक बार देख लेना इसको। थ्योरी तो कभी कभी आ जाती है थ्योरी, बट न्यूमेरिकल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम डैट चैप्टर। लिवरेज वाले चैप्टर का थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है वो। देन यू हैव इंपॉर्टेंट डिसीजन, नेक्स्ट डिसीजन डिविडेंड डिसीजंस।
डिविडेंड डिसीजन और वैल्यूएशन ऑफ फर्म इसी में है। इसमें वही तीन चीज़, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM थ्योरी और शायद लिंटनर मॉडल भी है। लिंटनर मॉडल ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बट ये दो तीन इंपॉर्टेंट है, वॉल्टर, गॉर्डर और MM। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ पढ़नी है, इस तरीके की थ्योरी। एजम्पशंस, कोर सजेशंस क्या है, ठीक है, और आपके पॉजिटिव्स, निगेटिव्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और अगर कोई डायग्राम हो तो वो 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। इनके आपको न्यूमेरिकल्स भी पता होने चाहिए। बहुत छोटे से न्यूमेरिकल हैं, बहुत क्रिस्प और आसान है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगेन न्यूमेरिकल में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर न्यूमेरिकल छोटा हो तो यू कैन सब्सटेंशिएट दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द थियोरिटिकल नॉलेज दैट यू हैव इन ऑर्डर टू शो दैट एग्जामिनर कि आपको जितने वर्ड डिविडेंड में क्वेश्चन पूछा गया है उतनी चीज़ आपको पता है। देन यू हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, प्लानिंग, डिसीजंस, ये सारे फैक्टर्स वगैरह जो है ये आपको पता होने चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग होल्डिंग ऑफ कैश फॉर ए कंपनी। सो ये जो फैक्टर्स है ना हर चीज़ के, सो यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। अगेन नेक्स्ट चैप्टर इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल में अगेन डिटर्मिनेंट्स वही है, फैक्टर्स रिलेटेड टू अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। देन यू हैव कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें 3 चीज़ हैं और तीनों की चीज़ों को पता होनी चाहिए, कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और कैश मैनेजमेंट का। कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपका सेम आप कैश बजटिंग में भी पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में, और यहाँ पे भी पढ़ते हैं। रीजंस फॉर होल्डिंग कैश, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री के मेथड्स, वही जो सिंपल मेथड्स हैं वो सारे 3-4 मेथड देख लेना, थ्योरी आ जाती है उनमें से कि व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच इन्वेंट्री कैन बी वेल मैनेज्ड। ठीक, एंड देन यू हैव रिसीवेबल मैनेजमेंट या फिर डेटर्स मैनेजमेंट। इसका क्वेश्चन हर साल आ जाता है लगभग 1-2 साल छोड़ के, और आसान क्वेश्चन है, थोड़ा PYQ देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। देन यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक आध साल न्यूमेरिकल आ जाता है बट नॉट रिलेवेंट मच फ्रॉम द न्यूमेरिकल परस्पेक्टिव, रादर रिलेवेंट फ्रॉम थियोरिटिकल परस्पेक्टिव। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग विथ फोकस ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन। थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही देखना है केवल आपको। मर्जर एक्विजिशन में टाइप्स ऑफ मर्जर, टाइप्स ऑफ एक्विजिशंस, वेरियस वेज ऑफ डूइंग जॉइंट वेंचर और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये क्या क्या तरीके हैं, मॉडल्स क्या क्या है, फ्रेंचाइजी मॉडल, जॉइंट वेंचर, है ना, मैनेजमेंट बाय बिजनेस बाय मैनेजर्स, और ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आप एक बार देख लेना। लीज सेल्स हो गई, ठीक है। सो ऑल दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट सब है FM में। सी सिंस FM हैव लॉट ऑफ वेटेज, सो यू कैन नॉट इग्नोर मच पार्ट ऑफ द FM। ढंग से सब कुछ करना है, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, क्योंकि FM अगर स्ट्रांग होगा तो आपकी पेपर 1 में अच्छे चॉइस आपके पास बढ़ जाएगी कि FM वाले एरिया में से आप क्वेश्चन पिक कर लो और उसको सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट FM. If you want to ask any book with regarding to FM, I will suggest you a book. बुक अगर आपको देखनी है तो आप बुक देख सकते हैं, अच्छी बुक है, ग्रेजुएशन में ज़्यादातर होती है, RP रुस्तुगी की बुक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है चीज़ों का, न्यूमेरिकल्स भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के, यू कैन सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स. Even after doing this book, if you want, you can refer to the notes of coaching institutes for practice purposes. However, this book is good enough. एक बार इसको पढ़ के देखना, अगर चीज़ नहीं समझ में आती है तो you can refer to those. Fine. So this is all about FM. If you want anything else to ask, you can ask in the somewhere. ठीक है? Sure. Thank you very much. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.